ऐसे ही पढ़ रहा था, ऐसे ही पढ़ रहा था, तो काफी कोई कंडीशंस है, और एक नॉर्मल रिटेलर जिसको बिना सीए का इंटरवेंशन एक कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर सकता है, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं बना है। क्योंकि एक छोटा किराना दुकान कहाँ सीए को अपॉइंट करेगा, कहाँ उसको सर्विसेज लेगा, कहाँ उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो पर्पस वाज दैट कि यार एक फ्लैट रेट ले लो, ना कोई कंप्लायंस का हेडेक, कुछ नहीं, खुद ही कर पाए कंप्लायंस एंड उसको अपलोड कर दे। बट द वे थिंग्स हैव बीन, ही डज नीड स्टिल प्रोफेशनल असिस्टेंस. It's not as simple as what somebody would have expected. Ki composition scheme means simply you don't need any professional assistance. Let's go to that. Now, देखिए, I'll go into the law क्योंकि it's very important, but I will also get into the practical aspects. ये लॉ क्या बोलता है? सेक्शन 10, ये जो सेक्शन 10 है ना, ये सेक्शन 10 चैप्टर ऑफ लेवी में आता है, ठीक है? क्या बोलता है ये कि सब्जेक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट subject to provisions of 93 and 94, where a registered person whose aggregate turnover does not exceed 50 lakhs may opt for composition. ये है उसका मेन एंट्री पॉइंट. तो पर्पस क्या है कि दिस इज अ ओवरराइडिंग सेक्शन, एन ओवरराइडिंग प्रोविजन. व्हेन वी से ओवरराइडिंग, it will supersede or it will prevail over all other provisions of the act, but subject to 9394. But when you look at this prevailing power, when you look at the superpower, you have to still apply 93 and 94, which is the RCM provision. ठीक है? तो ये इश्यू क्या आ रहा है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, इट इज सब्जेक्ट टू 93 and 94 of the GST law, whose aggregate turnover does not exceed 50 lakhs. फिर आगे provision है कि the government can by notification increase the limit to more than 50 lakhs. Now the issue here is कि ये purpose क्या है इसका provision का? The purpose is, if you read the highlighted section, in lieu of tax payable by him under 9(1). So this is not in addition, or this is not a replacement of the charging provisions, mind you. ये जो provision है section 10, अगर आप 9(1) ध्यान से, अगर आपको ध्यान में, it says GST is applicable or leviable on supply of goods at such rates and will be collected in so and so manner. अभी वहां पर at such rates as may be prescribed by the GST Council जो लिखा है ना, and will be collected in so and so manner. So this is a provision which is in lieu of tax which is otherwise payable under 9. तो अगर 9 में आपका कोई टैक्स बनता है तभी आप सेक्शन 10 में आओगे. अगर 9 में आपका टैक्स बनता ही नहीं है, and if 9 is not applicable at all under the GST law, then section 10 will not have to be looked at. I'll repeat this. Only if there is a charge of tax, only if there is a supply, only if that supply is taxable at a particular rate, will you look at section, there will be a tax payable. And only if there is a tax payable under section 9(1) will the provisions of composition really need to be looked at. So it says, notwithstanding anything contained in this act, but subject to 9394, a person whose aggregate turnover does not exceed 50 lakhs may opt to pay composition in lieu of tax payable under 9(1). ये है अपना. Now what will you pay? On an amount calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding so and so. So the summary which I want to tell, and this is very critical, why I am stressing so much on this. I may not stress too much time or effort on the other conditions which are okay, which are secondary.
we need to understand the entry point of composition, and उसमें है कि this is an alternative to the tax payable of the dealer, and this will be eligible only where the aggregate turnover does not exceed 50 lakhs, which has now of course been increased to 1.5 crores, and RCM provisions will still be applicable. These are very three important takeaways from the composition. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो you can raise it. I'm going a little slow. Let's make it interactive. Okay, I'll go ahead. अभी सवाल ये उठता है कि composition rate क्या है? We are all aware, but I will discuss it here. There are three different people who are covered under composition. One, a trader. Two, a manufacturer. And three, which we commonly call a person who is engaged in restaurant activity. These are the three people who are covered under composition. Now, for trader, the statute says 1%. Sorry, for a manufacturer, the statute says 1% for a manufacturer. For a service provider, the statute says 2.5%. So effectively 1 plus 1, which will become 2%. For a service provider, it becomes 2.5 plus 2.5, 5%. And the service provider is only those cases who are a restaurant. And in case of other suppliers, that is who is not a manufacturer or a person who is not a restaurateur, for him, it is half plus half, that is 1%. The government may by notification increase the limit. So if they have increased the limit of from 50 lakhs to 1.5 crores already. Now, one very important thing which we need to understand here is, when do you become eligible for composition? You become eligible for composition when your aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed whatever 1.5 crores. So the test of composition is on what is the aggregate turnover. But on what do you pay tax? You pay tax on the turnover in a state. देखिए ये बहुत बड़ा important difference है, and we will keep facing this. I think sometimes traders, of course, will not understand this, and businessmen will not understand this. We need to understand the legal, niceties of the law. The eligibility to test composition is on the aggregate turnover, but the payment of composition is on the turnover in a state. So they are two different aspects. Aggregate turnover has been defined under section 2 as all India turnover, PAN based or non-PAN based. Okay. Turnover in the state is also defined under the GST law, which is only that turnover which is applicable, let's say in Maharashtra, let's say applicable only in Karnataka. So we all know that in GST, each state has their own registration. Each state will have their own independent registration. For deciding composition, we look at the aggregate turnover which is across India, which is PAN based. But for paying the tax, we will only look at turnover in a state. What is turnover in a state? Turnover in a state is only that turnover which is there in that state. So a Maharashtra registration will have to pay composition tax only on the turnover in Maharashtra. A Karnataka registration will have to pay tax only on the turnover in Karnataka. So that is why, but to test composition, we have to check all over India's turnover. To check whether we are eligible for composition, we check all India turnover.
But for paying the composition tax, we only look at the turnover in that particular state. ये बहुत important चीज है, we should be keep in mind, especially for those. क्या होता है actually, हालांकि composition dealers don't have multi-state presence. Majority cases, they are all small retailers. They may not be having multi-state presence. But I have seen some cases where there are some towns in the borders. They may have two shops, one in this side of the state, one on the other side of the state. हाँ, वहाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है. Otherwise, as such इतना फर्क आता नहीं है. But if at all we come across that situation, we need to ensure that we only look at the respective state's turnover for paying the composition tax. Now, there are a lot of conditions for composition. I'll go to the conditions and then for a moment we will take up questions. One of the important conditions, most important condition for composition is that he should not be engaged in providing any service at all. If you see, except the service of supplying food in a restaurant, etc., except that activity, a composition dealer is not allowed to provide any other service activity, be it AMC, be it rentals, be it etc. So mostly, let's say these proprietors, I have come across, I've seen somebody cases, they are having a retail business, but they're also getting some rentals. जैसे ATM से rental आ गया, ATM बैंक से rental आ गया, या कोई दूसरे छोटी जगह से रेंटल आ गया, उसके वो नीचे किराने की दुकान है, उसके ऊपर उसने भाड़े पे चढ़ा रखा है, उसका रेंटल आ गया, तो कुछ भी हो सकता है. तो if at all there is rental income, then a composition dealer is barred to enter into composition. Yes, there are certain exceptions. One, if he has interest income on FDs or any other deposits, और इवन चीटी पे उन्होंने काफी लोग, मेरे सवाल आए कोई, there were certain people who were into pawnbroking, whether they can get into composition. So I thought, yes, they can get into composition. But if you have any other activity, and if that activity crosses 10%, समझ लीजिए मेरा टर्नओवर है ट्रेडिंग का 1 करोड़ रुपए, अगर 10 लाख मेरी सर्विस इनकम क्रॉस हो गई, then I am not eligible for composition. The moment it crosses 10 lakh, 10% of my turnover in a state, I am ineligible to opt for composition. That's what this slide says. Now let's go into the exemption conditions very quickly. Now exemption conditions are there in the rules as well as in the act. One, he should not be engaged in providing any supply of services. We have discussed that. Two, he should not be engaged in making a supply of goods or services which is not leviable to tax under the act. Now, let's remember, exemption is not a case of non-levy. Exemption, अगर समझ लो exempt products बेचता है, even a vegetable, even अपनी भाजी is also leviable, but the government has chosen by way of rates, prescription of rates and exemptions, if at all, to nil rate it or to exempt it. What is not leviable is only products which are there, this is petroleum products. That is one which is not leviable to tax. Or Schedule 3 items. Any Schedule 3 item will not be leviable to tax. If you buy and sell land also will not be leviable to tax. Third, he should not be engaged in making any interstate supply of goods or services. A composition dealer cannot make interstate supply of goods or services. He should not be engaged in making supply of goods through e-commerce operators, which is of course your Amazons and all those guys. He should not be manufacturing specified goods. There is a notification which specifies that. And he should not be either a casual taxable person or a non-taxable, resident taxable person. So this is the very important conditions which you have to satisfy. The moment you break any of these conditions, from that day on, you're out of composition.
That's what the provision says. The moment any of these conditions, so I'll repeat, 1.5 crore का limit cross कर दिया, that day on you're out of composition. You made an interstate supply, from that day on you're out of composition. You can't opt in back. आप ये नहीं बोल सकते कि यार अच्छा मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था, अभी कल से मेरे को वापस composition में डाली, नहीं. The moment you breach this, from that day on for all transactions you're out of composition. ये बहुत dangerous चीज है यार, ये अपने को बहुत ध्यान से चलना चाहिए. अभी क्या होता है, कोई आता है वो बोलता है यार मेरे को कुछ आइटम चाहिए किराना स्टोर, वो बिल बनाता है, बनाते नहीं है चलो बनाता है, उसने एड्रेस डाल दिया महाराष्ट्र से, समझ लीजिए गुजरात, सूरत लिख दिया एड्रेस सूरत, उसने चार्ज किया कॉम्पोजिशन, उसको ध्यान में नहीं रहा, अभी महाराष्ट्र से सूरत का आईजीएसटी बिलिंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो जाए, तो समझ लीजिए 1 तारीख को उसका कॉम्पोजिशन, 1 अप्रैल ही एनरोल फॉर कॉम्पोजिशन, 29 सितंबर को उसने एक सूरत पे एक पार्टी पे बिल बना दिया, डिस्पैच कर दिया, कुरियर में डाल के भेज दिया उसको, कोई समझ लीजिए कोई घर का ऑर्डर आया था, किसी का कंज्यूमर का ऑर्डर आया था, उसने कुरियर डाल के भेज दिया, अब डिपार्टमेंट को मिल गया, अभी उसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, अब वो तो भला आदमी समझ रहा है यार 29 सितंबर का ठीक है हो गया, मैंने कॉम्पोजिशन भर दिया, अभी क्या है बचा कुछ नहीं है, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर से फिर से कॉम्पोजिशन ही करता जा रहा है मार्च तक, अब असेसमेंट हुआ समझ लीजिए, असेसमेंट में पता चला इसने 29 सितंबर को इसने तो सूरत को कुछ माल भेजा है, इंटरस्टेट भेजा है, बस खत्म, पकड़ लेगा इस चीज को, वो क्या बोलेगा, आपने 29 सितंबर को इंटरस्टेट सप्लाई किया, फ्रॉम दैट डे ऑन आई विल डिनाई कॉम्पोजिशन, वो क्या करेगा, फिर वो 18% का प्रोडक्ट है तो कितना परसेंट है मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चर नहीं ट्रेडर के लिए समझिए 1% का है, 1% है, तो वो बोलेगा डिफरेंशियल टैक्स मांगो, क्रेडिट भी नहीं देगा, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस कंडीशंस, we need to ensure that we meet those conditions to the letter. Then mind you, let me tell you this, government, and this has happened in the past, courts have also stated this, अगर आपको 2 रास्ते दिए, आपको मुश्किल रास्ता भी दिया, आसान रास्ता भी दिया, दोनों दिया, आपने एक रास्ता चूज कर लिया, आपने कॉम्पोजिशन चूज किया, फिर आप उसके ऊपर रो नहीं सकते, आप क्रिप नहीं कर सकते कि ये कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये कंडीशन डिफिकल्ट है, ये कंडीशन आई विल मीट, ये कंडीशन आई विल नॉट मीट. द मोमेंट यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन, you have to strictly meet all the conditions. You cannot seek a waiver or you cannot seek a liberal view to any of these conditions. Interstate supply, you cannot engage in services, you cannot provide e-commerce operators, you cannot collect tax, composition tax, and you cannot manufacture any of those goods. Of course, that's a pretty substantial condition. So that's one thing which we need to. We should also say there's rule 5. ये rule 5. Rule 5 क्या बोलता है? A person who is engaged in composition, on the day he exercises the option to opt for composition, he should not be holding stock of interstate purchase of goods, or he should not have received goods from his branch or from an agent or principal outside India. The moment he exercises the option. 2, he should not have purchased goods from unregistered suppliers when purchased, and if he purchases it, he should pay tax under 9(4). That's what rule 5 says. अभी सवाल ये उठता है कि जब जीएसटी लॉ का इंट्रोडक्शन हुआ था तब आरसीएम पे भी, अनरजिस्टर्ड पे भी टैक्स लगता था, बट विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 12, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरसीएम ऑन अनरजिस्टर्ड यूआरडी जो टैक्स लगता था, हम बोलते थे वैट में यूआरडी टैक्स बोलते थे, परचेज टैक्स, वो बंद हो गया. तो ये कंडीशन, इवन इफ यू हैव स्टॉक, वी नीड नॉट पे द टैक्स बिकॉज़ 9(4) पे टैक्स नहीं लगता है. He should mention that he is a composition tax supplier, and he should mention it at common place. These are very critical conditions. The conditions which are there under section 10 are at most critical. The conditions which are there in rule 5, which is there down, which I have put down, are to large extent required for compliance. But if at all कोई कारण से नहीं हुआ, तो if it is not substantially altering, then we can seek a waiver or we can seek a lenient view. But as such, all conditions are imposable.
Yeah. Now, I think Dushyant ji का एक सवाल आया है, which I'll answer it right now live. If you are out of composition for the year or otherwise, for the or is it for that year or for the entire future years? ये बहुत अच्छा सवाल है. तो दुष्यंत जी का सवाल ये है कि I am out of composition in the middle of the year, समझ लो 29 सितंबर को. अभी अगले साल के लिए am I within the composition? So let एक इंटरेस्टिंग सवाल, अच्छा एक इशू आता है, समझ लीजिए. 29 सितंबर को मेरी कोई सर्विस इनकम आ गई and I'm out of composition. I pay tax on regular from 1st October, 30th September. But my overall 1.5 crores limit is still within the time. Mind you, दुष्यंत जी आपके लिए, अगर मेरा 1.5 crores in the current year is satisfied, then for 22-23 अगले साल my aggregate turnover is less than 1.5 crores. I might have even service income in that preceding financial year. I am still eligible to opt for composition once again from 1st April 2022. I hope I've answered your question, Dushyant. Even if I have one service income during the current year which makes me ineligible, या मैंने interstate supply, वो गुजरात सूरत का example दिया था मैंने, सूरत का मैंने interstate supply कर दिया, समझ लीजिए, I am out of composition. But again next year, if I'm still within the limits and I met the other conditions, that is 1.5 crores is the major condition. अगर वो मैंने meet कर लिया, then I'm back to composition from 1st April. अभी ये shift जब होता है तब क्या करना वो आगे हम देखेंगे, but वो चीज अपने को ध्यान में रखनी है. और कोई सवाल सर? कौन कोई सवाल है नहीं है अपने पास? अभी 69 पार्टिसिपेंट से कोई सवाल उठा नहीं है अभी तक. अभी तो क्या ऑनलाइन मोड में समझ में नहीं आता है कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, सब म्यूट में होते हैं. बट अगर डिस्कशन होगा तो और अच्छा सर डिस्कशन होगा. सर इसका मतलब कि जो इंटरस्टेट सेल का जो कंडीशन है या सप्लाई का कंडीशन है वो एवरी ईयर बेसिस वी हैव टू सी, एवरी डे. Okay, means in 2021 if I've done interstate supply, then I am not eligible for the composition from the day. From that year, from that day on. Yeah, for that year only. From next for year. That year, yes. Next year again you can opt for composition because the conditions have to be seen again from 1st April. Okay. Yes, sir. Thank you. ऋषभ जी, I have one question. बोलिए सर. अभी कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, हु इज अंडर दिस कॉम्पोजिशन स्कीम, तो वो कॉर्पोरेट्स को जाके ही कैन नॉट प्रोवाइड कैंटीन सर्विसेज? बिल्कुल कर सकता है जी. आपने बोला ना कि रेस्टोरेंट में खाना देने के अलावा ही शुडंट बी इन्वॉल्व एनी अदर सर्विस. अच्छा, मैंने रेस्टोरेंट तो एक सिंपलिस्टिक टर्मिनोलॉजी यूज किया है. ओके. Anybody who is engaged in serving food, फैक्ट्री में एम्प्लॉइज को, he will still be eligible for composition. In fact, आपका जो चाट वाला है वो भी कर सकता है, जो बाहर ठेले पे खड़ा रहता है वो भी आपका composition में जा सकता है. और केटरिंग सर्विस वाला? केटरिंग सर्विस वाला भी जा सकता है. अभी सवाल ये उठता है कि समझ लीजिए जो किराना एक दुकान है जहां पर जैसे मिठाई की दुकान है, वो ट्रेडिंग भी करता है और आपको वहां बनाकर पकवान भी देता है. उस पे रेट कौन सा लगेगा वो बहुत बड़ा सवाल, वो इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है. क्योंकि इफ यू गो बाय द स्टेटस ऑफ द पर्सन तब 5% लगता है. बट इफ यू गो बाय द नेचर ऑफ द बिजनेस तो ट्रेडर के हिसाब से रेट लगता है. तो उसपे थोड़ा सा विवाद चल रहा है कि क्या करना चाहिए. आई हैव सीन दैट इन मिठाई की दुकान, आई हैव सीन दैट कि दे आर नॉट एबल. तो मेरा जो मानना है, टर्नओवर इन अ स्टेट फॉर विच डिफाइंस इंक्लूड्स ऑल टर्नओवर. ऐसा नहीं है कि जीएसटी में सर्विस का टर्नओवर अलग अलग मतलब कैलकुलेशन अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली इनटू द जीएसटी रिटर्न सर्विस टर्नओवर एंड ट्रेडिंग टर्नओवर दोनों का एक सिंगल वैल्यू जाता है, और कॉम्पोजिशन रिटर्न भी वो एक सिंगल वैल्यू जाता है.
पर मेरा जो मानना है एटलीस्ट इन लॉ, इफ यू आर अ मिठाई की दुकान, आप हल्दीराम भी बेच रहे होंगे, आप चितले भी बेच रहे होंगे, जो भी बेच रहे होंगे, उस पे आपको ट्रेडिंग का टैक्स ही लगेगा। बट आप दूसरे पकवान भी बना रहे हो, जैसे आप वड़ा पाव भी बेच रहे हो, उस पे आपको कॉम्पोजिशन का टैक्स लग 5% का। तो आप इस चीज को देखिए, वैल्यू एडिशन जो है ट्रेडिंग आइटम में कम रहता है, इसलिए रेट कम होता है। बट जो सर्व्ड आइटम है उसमें वैल्यूएशन ज्यादा होता है। तो जहां पर भी आप सर्विस, जैसे टेबल चेयर है, आपके यहाँ छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट भी बना रखा है आपने, तो वहां जो टेबल चेयर है, स्पेशली ये बेकर्स और ये जो आपके मिठाई की दुकान है, टेबल चेयर भी रखते हैं, वहां पर जो सर्विस हो रही है उस पे आपको आइटम जो है 5% लगा है। तो आपको अलग रेट होगी। अभी रिटर्न में ये कैसे फिल करेंगे वो मेरे को आइडिया नहीं, मैंने कभी किया नहीं है, बट मेरा जो समझ है, इफ इट इज नॉट ऑटोमेटिक यू कैन डू अ सेपरेट कैलकुलेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू। और सर, और कोई सवाल है? ऐसे सवाल पूछते रहिए तो हमारे को भी, हम भी जगह हुए रहते, नहीं तो हम भी सो जाएंगे। पार्टिसिपेंट से तो इस समय कोई नहीं है, जैसे ही कुछ आता है तो आई लेट यू नो। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा एक और स्कीम है। हमने बताया था कि एक कॉम्पोजिशन स्कीम में आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, ट्रेडर हो सकते हो, या a service provider who is only engaged in serving food for human consumption। मिठाई की दुकान ले लीजिए, रेस्टोरेंट ले लीजिए, फास्ट फूड जॉइंट ले लीजिए, जो भी है। So if you had any other service turnover, तब you were out of composition. That was the condition under section 10। अभी मान लीजिए they came out with another scheme in 2019, if my memory is right, I think 2019 बराबर। उन्होंने क्या कहा, चलो ठीक है, there may be small time service providers, 50 लाख तक का टर्नओवर था, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। So those people who are pure service providers, I'll repeat, those people who are pure service providers, मान लीजिए एडवोकेट है, छोटा एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी फ्रीलांसर है, जो भी है, 50 लाख तक अगर उसका सर्विस है, तो उसके ऊपर 3+3 6% का कॉम्पोजिशन स्कीम बनता है। उसके पास वैसे भी क्रेडिट नहीं रहता है, मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर जो पर्सनल सर्विसेज है जैसे, तो उसपे क्रेडिट तो होता ही नहीं है, तो 6% भर के वो भी खुश हो जाता है। अभी ये एक और सवाल है, इसमें और कोई आ सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मान लीजिए कोई गुड्स टर्नओवर भी करता है 50%, समझ लीजिए 25 लाख गुड्स भी करता है, 25 लाख सर्विसेज भी करता है। अभी हम लोग तो वो पुराने स्कीम में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एक लिमिट है कि आप 10% से ज्यादा आप सर्विस कर नहीं सकते। तब क्या बोलता है कानून कि चलो ठीक है, अगर आपका 10% नहीं कर सकते तो आप ये 6% स्कीम में बिल्कुल आ सकते हो। तो मेरा एक सवाल उठता है सभी के लिए, चलिए आप जवाब दीजिए मेरे को। अगर मेरा 29 सितंबर को मेरा टर्नओवर पूरे साल का 50 लाख से नीचे है, ठीक है, मेरा असेसमेंट चल रहा है, तो मेरा ऑफिसर ने बोला, अरे आपने तो 29 सितंबर को 50 लाख 6 लाख का आपने सर्विस इनकम कर दी, मतलब फ्रॉम 6 सितंबर यू आर इनएलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन अंडर 2%। तो क्या हम लोग असेसमेंट के टाइम कुछ कर सकते हैं? वो तो बोलेगा 18% लगा सकते हो। हमारे पास कोई ग्राउंड बनता है क्या कि हम लोग नहीं, हम कॉम्पोजिशन में रह सकते हैं? ये एक सवाल है। मेरा सवाल मैं फिर से दोहराता हूँ, समझ लीजिए हमारे पास 50 लाख का टर्नओवर से कम है, हम लोग हमारा टर्नओवर, हम 6 लाख का सर्विस दे रहे, 6 लाख सर्विसेज एंड 44 lakhs as goods trading turnover, so I have crossed 10 lakhs 10% limit, am I eligible for composition? ऑफिसर इश्यूज अ शो कॉज नोटिस और वो स्क्रूटनी कर रहा है, चलो स्क्रूटनी कर रहा है कि यार आप कॉम्पोजिशन में एलिजिबल नहीं। इसका हमारा क्या जवाब हो सकता है? कोई जवाब देना चाहता है? चलो मैं जवाब देता हूँ।
मैं तो बोलूंगा उस ऑफिसर को, भैया जी ठीक है, चलो मान लिया आप बोल रहे हो कि मैं 10 पहले वाले कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं हूं, बट मेरे पास एक और कॉम्पोजिशन स्कीम है, उसका आप मेरे को अभी ऑप्शन दीजिए और मैं डिफरेंशियल कॉम्पोजिशन टैक्स ही भरूंगा। तो मैंने अगर समझ लीजिए ट्रेडिंग टर्नओवर पे 1% भर दिया है, अभी आता है कि वो बोलेगा नहीं आपने तो सर्विस इनकम 10% क्रॉस हो गई है, तब आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते, वो बोलेगा 18% लगाता हूँ फ्रॉम डे 1। मेरे हिसाब से हम लोग बोल सकते, एक स्टैंड ले सकते, नहीं साहब ठीक है, I have another scheme which is eligible to me. You give me the benefit of that scheme. I will pay only differential 5%, 6%, 3 plus 3. I will pay as long as I have met the other conditions of the scheme. ठीक है? I think that's one. कुणाल जी का एक सवाल आया है. There is some percentage service sale allowed बराबर under composition for trading business. If yes, then at what rate we need to pay GST on such service sale if within limit? बहुत बढ़िया सवाल है कुणाल जी. अगर आपका समझ लीजिए 1 करोड़ में 90 लाख आपका ट्रेडिंग टर्नओवर हो गया एंड 10 लाख आपका सर्विस टर्नओवर हो गया, तो आपको सर्विस टर्नओवर पे भी कॉम्पोजिशन रेट ही भरना है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि द टैक्स ऑन कॉम्पोजिशन इज द एंटायर टर्नओवर इन द स्टेट, इसलिए टर्नओवर इन द स्टेट इज अ वेरी क्रिटिकल टर्मिनोलॉजी। इट इज नॉट ऑन दी ओनली ट्रेडिंग टर्नओवर। अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से सेक्शन 2, इसलिए मैंने सेक्शन 2 हाईलाइट भी किया था, ठीक है। It is on the entire turnover in the state, irrespective of the type of turnover. It could be goods, it could be services. As long as you are within the composition, you can pay the tax, including on services, within the limit at the composition. So I hope I have answered Kunalji's point. There is one more question. Can a supplier have two business and opt for composition for one of his business and have a single registration, or we need two registration? हाँ जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने रेस किया, जो हमने अभी तक मैंने एड्रेस नहीं किया इन द स्लाइड, सो आई विल एड्रेस दैट आल्सो। वन ऑफ द कंडीशंस इज इफ यू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन, you are that composition scheme is applicable for the entire पैन नंबर। अगर आपका पैन नंबर एक है, अभी तो कोई इंडिविजुअल 2 पैन नंबर रख नहीं सकते, वो जमाने गए। अगर आपका पैन नंबर एक है और आपके कितने भी बिजनेस हो, so you are liable for composition for all the businesses. You cannot choose कि इस बिजनेस में composition करूंगा, इस बिजनेस में मैं रेगुलर स्कीम में जाऊंगा। You have to follow the composition. That's why मैंने बोला था शुरू में कि अगर आपका कोई कंडीशन ब्रीच, अगर आपने ऑप्ट किया इस composition स्कीम में, you have to necessarily meet all the conditions. You cannot pick and choose any condition very strictly. So इसलिए whoever has asked that question, I hope I have answered that point. So you cannot, even if you take multiple registrations within the state, all those registrations, whether in that state or other state, you have to pay composition. So ठीक है, आप आपके फाइल में आप composition जाओगे तो in your spouse's file you can go on a regular scheme, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, but एक ही premises में रखना, उसको bifurcate करना, वो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। So there are two composition schemes which I have broadly put down. Now, what is turnover in state? इस पे computation of turnover पे दो चीजें ध्यान रखनी है। One is how do you compute aggregate turnover? अभी एक let's take a case, मैं आपको एक केस बताता हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, आज 30 सितंबर को शुरू किया। मैंने रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, क्योंकि मेरे को बोला देखते हैं यार कैसे चलता है, नया प्रैक्टिस खोला है, 20 लाख रुपए क्रॉस होगा नहीं होगा पता नहीं। तो मैंने क्या किया है, ठीक है, मेरा पिछले साल तो कोई टर्नओवर था नहीं, इसमें एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन बिकॉज प्रीसीडिंग ईयर माय टर्नओवर इज ऑफ कोर्स लेस देन 1.5 करोड़। आई वाज सैलरी इनकम, समझ लीजिए पिछले साल तक। इस साल मैंने प्रैक्टिस खोला है, अभी सितंबर को मैंने प्रैक्टिस खोला है, तो मैं बिलिंग करते गया। मेरी दूसरी इनकम भी थी, बट मेरी बिलिंग करते गया, मेरे को दिसंबर में मेरे को 20 लाख क्रॉस हो गया। समझ लीजिए बोरी वाली से मेरे को एक बड़ा कंसाइनमेंट आ गया, असाइनमेंट आ गया, तो मेरा 20 लाख क्रॉस हो गया दिसंबर। अब सवाल ये उठता है, I will take registration the moment it crosses 20 lakhs because I'm a service provider or in December.
दिसंबर टू मार्च मैं बिलिंग करूंगा, क्योंकि मेरा अभी रजिस्ट्रेशन ले चुका है। वंस आई टेक रजिस्ट्रेशन आई कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ 20 लाख, बस 20 लाख क्रॉस हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि मेरे को कॉम्पोजिशन सितंबर से मार्च तक का टर्नओवर पे टैक्स भरना है या दिसंबर से मार्च तक का टर्नओवर, द डे from the day I took registration or from the day I started business? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे एक्सप्लेनेशन आ चुका है कि if a person is liable for deciding eligibility of 1.5 crores, for computing 1.5 crores, you look at the entire year's turnover. But for paying composition, you look at only the turnover from the day he became liable for registration to the end of the year. That is why we should look at, we'll have two turnovers for a composition dealer. One, the turnover to check whether he is eligible. Two, the turnover on which you pay the composition. तो जीएसटी लॉ क्या बोलता है कि अगर आपका इसी साल रजिस्ट्रेशन हुआ है या समझ लीजिए सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, कभी भी हुआ है, आप पिछले साल का टर्नओवर देखोगे, अगर वो क्रॉस नहीं हुआ है तो यू आर एलिजिबल, और पिछले साल पूरे साल का देखोगे, ऐसा नहीं कि फ्रॉम द डेट यू हैव रजिस्टर्ड। एंड जब आप टैक्स भरोगे ओनली फ्रॉम द डे और द मंथ ऑन व्हिच यू आर रजिस्टर्ड दैट यू आर लायबल फॉर कॉम्पोजिशन। ये चीज एक है। दूसरा, you might have had FD income, you might have had certain deposits income, corporate deposits income. That will not be included for the purpose of calculation of your turnover. ये बहुत aggregate turnover for the purpose of only the turnover in the state. It will be calculated for deciding aggregate turnover. देखिए, interest income on FD, if it is part of a business activity, is part of aggregate turnover, but it is not part of the टर्नओवर इन स्टेट। ये बहुत बड़ा फर्क है। जो एफडी इनकम या जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट आता है वो दैट इनकम इज एक्सक्लूडेड फॉर एग्रीगेट टर्नओवर, बट इट इज नॉट एक्सक्लूडेड फॉर एग्रीगेट टर्नओवर, इट इज एक्सक्लूडेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। ओके, अभी एक और सवाल है, इन केस ऑफ रेस्टोरेंट अंडर रेगुलर स्कीम रेस्टोरेंट कैन कलेक्ट 5% विदाउट एनी रेस्टोरेंट। अरे बिल्कुल, सवाल आपका बहुत ही वाजिब सवाल है। आप ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, और इसलिए मैंने एक बोला था पॉइंट, इनिशियल नोशन ऑफ था कंपोजिशन बहुत ही अच्छा था, फिर इन्होंने ये नोटिफिकेशन लाके 5% करके विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट करके इसको इक्विवेलेंट ऑफ कंपोजिशन की बना दिया। इट इज बेटर टू गो अंडर द नोटिफिकेशन एंड से मैं 5% कलेक्ट तो कर सकता हूं मैं मेरे कस्टमर से, एंड देयरफॉर इट इज बेटर टू गो अंडर नोटिफिकेशन रादर देन कंपोजिशन। बट इसमें एक ही नुकसान है साहब कि देखो रेस्टोरेंट क्या है, वो कलेक्ट करता तो नहीं है ऐसा, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स फ्लैट फी रहता है, ये आपका वड़ा पाव का 30 रुपए, ये 50 रुपए, जो भी वो आप कलेक्ट करो नहीं करो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपोजिशन में जाओ नहीं जाओ उससे कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट मेरे हिसाब 5% तो अपने पॉकेट से ही देना है। बट आप अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप अगर कॉम्पोजिशन में जाओगे तो दूसरा फायदा क्या है, आपको क्वार्टरली रिटर्न ही भरना पड़ेगा, क्वार्टरली टैक्स ही भरना पड़ेगा, और बहुत ही सिंपल रिटर्न है, जीएसटी या 3B1 नहीं भरना पड़ेगा। अभी बराबर है, QRMP स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, पर वो भी मंथली पेमेंट है, उसमें कोई मजा नहीं है, उन्होंने तो और कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो रेस्टोरेंट के लिए अभी भी कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत सिंपल है, एक नंबर प्लग इन कर दिया, नो जीएसटी ऑडिट का टेंशन, नो कुछ किसी का टेंशन। कॉम्पोजिशन स्कीम को डिपार्टमेंट को चाहिए भी नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू रियली गेट इनटू दैट। एंड क्वार्टरली रिटर्न भरते जाओ, क्वार्टरली पेमेंट करते जाओ, मंथली एक ईयरली एक रिटर्न भर दो, खत्म हो गया बात, सवाल खत्म। हाँ बट किसी को समझ लीजिए और नहीं मेरे को इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूँ, सर्विस इनकम कुछ और है, तो देन यू कैन गो टू द एग्जेम्पशन, जो भी है कोई बात नहीं। हाँ, एक सवाल इंटरेस्टिंग है, अगर आप रेस्टोरेंट में हो और आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, बराबर, ये बहुत इंटरेस्टिंग इश्यू आता है, पहलू आता है। समझ लीजिए आप कॉम्पोजिशन में हो, कोई कारण से आपको एक केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कोई नेबरिंग स्टेट में, आपने वहां जाके डाल दी इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, तो ऑफिसर क्या कर सकता है, वो बोलेगा चलो ठीक है, आई विल डिनाई कॉम्पोजिशन फ्रॉम दिस डे।
चलो बस डन। कॉम्पोजिशन डिनाई करने के बाद भी रेट तो वही लगने वाला है, तो उससे एक फायदा ये हो जाता है कि इवन इफ दे डिनाई कॉम्पोजिशन इन द रेस्टोरेंट केस, क्रेडिट तो लेना नहीं है, तो 5% ये कोई एडिशनल रिकवरी नहीं होगा टैक्स पेमेंट का। वो एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, नाउ हाउ डू यू कंप्यूट, ये तो हो गया ये बराबर। हाउ डू यू कंप्यूट टर्नओवर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेट्स गो इनटू अ लिटिल मोर डिटेल। For deciding limit, you'll have to look at aggregate turnover. Now 1.5 crores is the turnover limit. 75 lakhs for those few states in the northeastern part. So what will you include? You will include taxable supplies, exempt supplies, export, interstate supplies less the tax portion. अभी ये सवाल कोई पूछेगा, यार सर आप इंटरस्टेट सप्लाई कैसे डाल रहे हो, जैसे कॉम्पोजिशन में इंटरस्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकता, तो आपने कैसे इसको इंक्लूड करने के लिए क्यों लॉ ने लिखा है कि इसको इंक्लूड करो। देखिए, कॉम्पोजिशन का जो टर्नओवर लिमिट है ना, वो प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर पे चेक होता है। तो पिछले साल आपने किया होगा इंटरस्टेट सप्लाई, आप कॉम्पोजिशन इस साल ले रहे हो 1 अप्रैल से, तब आपको पिछले साल का अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई था भी या एक्सपोर्ट था भी, उसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर थ्रेशोल्ड 1.5 करोड़ का। But इस साल the moment you enter composition, then you cannot engage the interstate supply. And if you engage in interstate supply in the month of October, November, March, example के लिए, then from that day on again you are not into composition. But 22 से फिर से you can check for composition, but you will take all turnover, taxable, exempt, interstate, export, सब कुछ लेंगे। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज है, ठीक है, ये चीज है। बाकी और कोई लंबा छोड़ा नहीं है कैलकुलेशन में। यू नीड टू इंक्लूड एवरीथिंग, बेसिकली एंटायर पैन बेस्ड टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। अभी काफी बार कोई सवाल उठता है, साहब हम हमारा तो कोई टर्नओवर था ही नहीं, तो हम कैसे चेक करें। तो टर्नओवर था ही नहीं तो जीरो ही मानोगे उसका, क्योंकि बिजनेस खत्म, बिजनेस तो हमने इसी साल शुरू किया है। आर वी एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन? यस, यू आर सर्टेनली एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन। इवन इफ अंबानी ओपन्स अ शॉप ऑन 31 मार्च, एक फैक्ट्री खोलता है, तो वो एक दिन के लिए समझ लीजिए उसका नया कंपनी है, नया बिजनेस है, तो एक दिन के लिए भी कॉम्पोजिशन में जा सकता है। थियोरेटिकल एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि यू लुक एट प्रीसीडिंग के टर्नओवर एंड टर्नओवर नहीं है, तो यू कैन स्टिल गो फॉर कॉम्पोजिशन। नाउ अभी ये सवाल उठता है कि रेट क्या है। अभी इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग इश्यू आते हैं। हमने तो बता ही दिया था पहले कि रेट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए रूल्स में तो उन्होंने कम कर दिया है। रूल आप रेफर कर सकते हो, रूल बता देता हूँ, रूल 7 में उन्होंने क्या कर दिया है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को एक समान कर दिया। बहुत ही समझदारी वाली काम है ये, क्योंकि आप ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मैन्युफैक्चरर का तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है जीएसटी में, तो भी डिफरेंशिएट कर रहे थे एनैक्टमेंट में, स्टैट्यूट में, ठीक है, उन्होंने कम कर दिया। अभी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों का रेट 0.5% कर दिया है। ऑल्दो मैन्युफैक्चरर का स्टैट्यूट में रेट 1% है, उन्होंने बोले ठीक है उसको 0.5% कर, टोटल 1% लगता है अपने गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड रेस्टोरेंट के लिए 5% लगता है। नाउ टर्नओवर इन द स्टेट, ये तो हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो एक एग्जांपल लेते समझ लीजिए। टैक्सेबल टर्नओवर विद इन द स्टेट 15 लाख रुपए, एग्जेम्प्ट टर्नओवर विद इन द स्टेट 17 लाख रुपए, टोटल टर्नओवर 32 लाख। वेदर composition is applicable on 17 lakhs or 32 lakhs or 15 lakhs, ये एक सवाल है। चलो एक ओपिनियन पब्लिक पोल लेते हैं इसके लिए। I am a manufacturer, I have 15 lakhs as trade taxable turnover, 17 lakh as exempt turnover, aggregate 32 lakhs, 1% 32,000। ट्रेडर के लिए will I pay tax on 32 lakhs or will I pay tax on 15 lakh? Which anybody wants to answer this? अजीत जी रूवाला बोलते हैं 32 पे भरना पड़ेगा। और कोई कुछ बोलना चाहता है?
अमन जी बोलते नहीं जी हम लोग इस पे 15 पे ही भरेंगे, विशाल जी बोलते 15 पे ही भरेंगे। और कोई जवाब देना चाहता है पैनलिस्ट के अलावा और पार्टिसिपेंट्स? देखिए कोई और हो जाता है, कोई है और? काफी, हमारे तो कितने हैं, 67 पार्टिसिपेंट है, अपने में तो दो तीन ही जवाब आए। हाँ कुणाल जी बोलते 32 लाख पे भरेंगे जी। चलो तो मत दोनों के बराबर है, कोएलिशन गवर्नमेंट आने वाली है अभी। चलो मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ मेरा क्या मत है। तो अगर हम सेक्शन पढ़ेंगे, इट सेज पे टैक्स ऑन टर्नओवर इन स्टेट एंड टर्नओवर इन स्टेट इंक्लूड्स एग्जाम टर्नओवर, बराबर। तो यहाँ तक मेरा भी काफी क्लियर था कि यार 32 लाख पे भरेंगे। बट अगर किसी के पास रूल 8 है, रूल 8 है तो आप देख लीजिए, मैंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन में डाला नहीं है, मैं बताता हूँ। रूल 8 क्या बोलता है, फॉर मैन्युफैक्चरर्स इट सेज टर्नओवर इन स्टेट, ठीक है, बट फॉर ट्रेडर्स रूल 8 में क्या लिखता है, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन स्टेट। हाँ ये लिखा है इधर, बराबर। इन दोनों में फर्क देखिए, ये रूल 8(7) में लिखा हुआ है ऐसे, इससे सवाल ये आता है कि ये यहाँ पर इन्होंने एक नया वर्ड क्यों जोड़ा है, टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज लिखा हुआ है एनएक्टमेंट में, टैक्सेबल सप्लाईज मींस ओनली दैट वैल्यू ऑन व्हिच टैक्स इज पेबल। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया था रूल 7 पढ़ने से, तो तब मेरा व्यू चेंज हो गया। तो मेरा भी व्यू पहले वही था कि 32 लाख पे भरना चाहिए, राजेश जी भी वही बोल रहे हैं 32 लाख पे। बट रूल 7 देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉर ट्रेडर्स the tax which is payable is only on the taxable supplies, although section 10 says it is on the entire turnover in the state. The rule which actually levies the compute amount of tax is on taxable supplies for traders. तो फिर तो मेरा तो मानना है कि exempt, तो समझ लीजिए मैं रिटेल दुकान हूं, मैं सब्जी भी बेचता हूं, मैं किराना राशन भी बेचता हूं, मैं दाल चावल भी बेचता हूं, सब बेचता हूं, अनब्रांडेड दाल चावल, बिस्किट भी बेचता हूँ, ब्रेड भी बेचता हूँ। मेरा मानना है आफ्टर रीडिंग रूल 7 आपको सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे ही कॉम्पोजिशन टैक्स भरना है एंड नॉट ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स। ये मेरा मानना है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है, बट मेरा ये पढ़ने के बाद मेरा तो यही व्यू है कि रूल 7 में लिखा है टैक्सेबल सप्लाईज। ये देखिए बहुत काम की चीज है यार, ऐसा तो रूल कोई, और मैन्युफैक्चरर में लिखा है टर्नओवर इन द स्टेट। तो मेरा जो मानना है कि जब टैक्सेबल सप्लाईज लिखते हैं तो ओनली ऑन दोस टैक्सेबल आइटम्स यू नीड टू पे, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था सेक्शन 10 में, इन ल्यू ऑफ टैक्स पेएबल अंडर 9(1). अभी 9(1) में टैक्स अगर पेएबल ही नहीं है तो क्यों टैक्स भरना चाहिए? अगर एग्जेम्प्ट है तो गवर्नमेंट को वैसे भी रेवेन्यू मिल गया है, कहीं पर भी क्या मिलना है, इट्स नॉट ड्यू एट ऑल फॉर दैट रेवेन्यू। तो कॉम्पोजिशन इज इंस्टेड ऑफ, इन ल्यू ऑफ, एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर के जैसे है। जब मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या बनाओगे? तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लो एक शेयर होल्डर होते हो, आप प्रॉक्सी बेच सकते हो, प्रॉक्सी तो बेच सकते हो। अगर आप शेयर होल्डर ही नहीं होगे तो आप कोई प्रॉक्सी बन ही नहीं सकते किसी का। उसी आधार पर जब अगर टैक्स लगता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है, जैसे सब्जी हो, जैसे दाल चावल हो, जिसपे टैक्स लग नहीं लगता, अनब्रांडेड, अनपैक्ड, लूज, तब मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन द एग्जेम्प्ट टर्नओवर। ये मेरा जो मानना है। ऑफ कोर्स देयर मे बी डिफरेंस ऑफ व्यू, बट आई एम स्ट्रांग बिकॉज ऑफ सेक्शन ऑफ रूल 7 व्हिच डिफरेंशिएट्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर अदर ट्रेडर्स। तो हो गया जी, चलो आगे चलते हैं जी। तो अमन जी और विशाल जी आपका जवाब सही था। चलो, इनएलिजिबल पर्सन्स बराबर है जी हमारा, सप्लाई और सर्विसेज, नॉन टैक्सेबल लेविएबल गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई, ये सब डिस्कशन हो गया है। आइसक्रीम वाले को उन्होंने बार कर दिया है कि आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते हो, ठीक है। अप टू 10% ये भी डिस्कस हो चुका है जी। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं जी।
Assessee has a turnover of 125 lakhs in the preceding financial year. Assessee will also start providing supply of services in the current year. Check the eligibility of a composition under section 10. अच्छा मैंने अब फिगर नहीं लिखा है, सॉरी. Let's say Assessee has a total turnover of 125 lakhs in the preceding financial year. Now, in the current year, let's say I have service income of 10 lakhs and goods income of 90 lakhs. तो ये 10% का कंप्यूटेशन आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे करेंगे या इस साल के फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर पे करेंगे? You will do 10% of computation in the as based on the current year's turnover, not based on the preceding financial year. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 12 लाख तक आप सर्विस इनकम दिखा सकते हो, नहीं. आप इस साल में अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है तो आप सिर्फ 10 लाख का इनकम दिखा सकते हो, 125 लाख का के बेस पे आप सर्विस इनकम नहीं दिखा सकते. फिर अगला सवाल आता है, इज कॉम्पोजिशन एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पैन? यस. ऑप्शन टू पे कॉम्पोजिशन लैप्सेस इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 75 लाख. बहुत सीधी सी बात है, हमने डिस्कस कर चुके हैं. कॉम्पोजिशन टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड. हमारे कर्नाटक में तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टैक्स आप कलेक्ट कर सकते थे, पता नहीं आपके महाराष्ट्र में 1% कलेक्ट कर सकते थे या नहीं, बट हमारे कर्नाटक में तो कर सकते थे. आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड. बहुत ही दिखती चीज है ये. irregular availment of composition scheme shall be liable to tax and penalty. RCM will be applicable. हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए. ऐसा नहीं है कि if you are under composition RCM नहीं applicable. RCM is applicable for, आप समझ लीजिए, लॉयर सर्विसेज लेते हैं, इंपोर्ट लेते हैं, GTA लेते हैं, कोई भी ऐसा फ्रेट लेते हैं, तो उस सब पे आपको composition ये भरना ही पड़ेगा. आपको RCM तो भरना ही पड़ेगा. We shall mention the word composition tax, composition person. No restriction on, there is no restriction on procuring interstate supply. ये बहुत ही important चीज है. Although there is a restriction on selling interstate, there is no restriction on buying interstate. But on the day you opt for composition, you should not be having stock of interstate goods or imported goods. I'll repeat, ये बहुत ही important चीज है. There is no restriction on buying interstate during the year when you are under composition. But when you're opting for composition, you cannot have stock of goods which is interstate. ये थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हम लोगों को. अच्छा, डन सर. चले आगे चलते हैं. ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है. आई वुड लाइक टू पॉज हियर. आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल गेट इनटू प्रोसीजर्स. क्या प्रोसीजर्स तो मेरे से बेहतर आप लोग जानते होंगे, मैंने इतना डील नहीं किया है. बट बिफोर आई गो टू प्रोसीजर, लॉ तो मैंने अभी जब समझा दिया पूरा. इससे अभी आपका काफी सवाल है, फिर एक केस स्टडीज है एक दो, उस पे बाद में जाएंगे. अभी जो सवाल है किसी के, तो उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं. हाँ जी, कोई सवाल है? कोई सवाल पूछेगा? टू एंश्योर इफ आई हैव बीन थरो विद माय प्रिपरेशन, कोई सवाल तो पूछिए. सर आपने इतना डिटेल में बता दिया, किसी का सवाल है नहीं, सब डाउट क्लियर हो गया. या दूसरा भी हो सकता है कि किसी को समझ में ही नहीं आया. वो चांसेस कम है सर. चांसेस कम है पर नहीं, कोई सवाल है तो क्या इंटरैक्टिव बनाते, प्रैक्टिकली क्या सवाल उठे काफी लोगों को. सर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हो जो आपके प्रैक्टिस में है, वो एक ले लीजिए. हाँ, मैंने जो एड्रेस तो कर दिया है. वेयर पीपल आर, सो आई हैड अ केस. किसी सवाल पूछा था, मेरे पास केस तो नहीं था. किसी ने सवाल ये पूछा था मेरे से. कोई मिठाई की दुकान है, वो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि वो मिठाई बनाता है, बेकरी बनाता है, बेकरी प्रोडक्ट बनाता है, बराबर. तो विशाल जी, वो अमन जी या विशाल जी, कौन सवाल पूछ रहा था? तो हाँ विशाल जी. तो वो भी मैन्युफैक्चरर भी है एक्चुअली, बेकर. तो एक तरीके से आप देखिए, क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट बना रहा है. अभी एक टाइम तो उस पे सवाल ये उठता था कि डू आई हैव टू अप्लाई मैन्युफैक्चरिंग रेट और रेस्टोरेंट रेट और ट्रेडिंग रेट.
आपका क्या व्यू है? समझ लीजिए मैं एक बेकरी हूं, मैं बेकरी प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक तो वड़ा पाव बना रहा हूं, एक बेकरी प्रोडक्ट बना रहा हूं, समझ लो ब्रेड बना रहा हूं, ब्रेड लोफ। तो मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं क्योंकि मैं बेकरी प्रोडक्ट बना रहा हूं। मैं ट्रेडर इस हिसाब से हूं कि मैं कोई दूसरा आइटम बेच रहा हूँ। एंड मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ क्योंकि मैं ना, समझ लीजिए कोई चाहिए तो पफ, जैसे कोई पफ बनाना रहे या कुछ वड़ा पाव बना रहे, वो भी हाथों हाथ बना के दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि साहब मैं कौन सा रेट लगाऊं? ये बहुत ट्रिकी सवाल है। आई डोंट हैव अ कंक्लूसिव आंसर, बट मेरा जो मानना है, जो ब्रेड का लोफ बनाता है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से रेट लगाऊं। बराबर। अगर मैं उधर ही टेबल चेयर पे वड़ा पाव सर्व कर रहा हूँ तो मैं रेस्टोरेंट के जो भी आपके ईटिंग जॉइंट, फूड जॉइंट के हिसाब से 5% देता हूँ। और समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट मैं खरीद के उस बेकरी में आगे बेच रहा हूँ, तब मैं ट्रेडर का रेट लगाऊंगा। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि कानून समझता है कि आप सिर्फ एक ही हो सकते हो। कानून ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हो। कानून ये नहीं बोल रहा है कि आप सिर्फ ट्रेडर हो सकते हो। आपने अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है, मिठाई की दुकान इज अ क्लासिक एग्जांपल, तब आपको इंटरनली तीनों का अलग बाइफर्केशन करके तीनों का अलग रेट लगेगा। वैसे फिलहाल ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए रेट सेम ही है, आज की तारीख में तो सेम ही है। पहले आई थिंक अलग था, मेरा जितना समझ है, बट आज की तारीख में तो सेम ही है रेट। जब रेट सेम है कोई तकलीफ नहीं है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में। बट अगर रेट अलग है और कल के दिन अलग हो जाए, आपको ट्रेडिंग का अलग टैक्स भरना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग भरना पड़ेगा। तो आपको वो रिकॉर्ड्स उस हिसाब से उतना आपको रिकॉर्ड्स अलग रखना पड़ेगा। अभी मैन्युफैक्चरर क्या होता है, फिर हम लोग वापस एक्साइज की दुनिया में जाएंगे फिर कि क्या मैन्युफैक्चर होता है। तो अभी आप मिठाई की दुकान में देखेंगे तो जो फरसान बनते हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो। अच्छा, एंड दे आर नॉट फॉर कंजम्पशन देयर, हम तो बस उसको बांध के दे देते हैं, मिठाई भी बांध के दे दो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बट हमारे पास बॉट आउट आइटम भी होता है, समझ लो पानी की बोतल दे दी उसको साथ, वो ट्रेडिंग आइटम हो। एक किनले की बोतल दे दी, वो ट्रेडिंग आइटम होगी, उस पे हम लोग फिर जो भी रेट है लगेगी। और वहां पर टेबल चेयर भी खड़े कर दिए हमने, आए पोहे दे दिए, दाबेली दे दी, वड़ा पाव दे दिया, वो फिर वापस सर्विस आइटम, तो वो 5%। तो ये चीज अपने को बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था मेरे लिए, तब एकेडमिक सवाल था, तो हमने तो ऐसे ही एडवाइस दिया है। बट प्रैक्टिकली मैं समझना चाहता हूँ, अगर ऐसा किसी के पास केस था, किसी के जो भी 67 पार्टिसिपेंट है इधर, कि ऐसा कोई केस है तो उन्होंने रिटर्न में कैसे भरा है, वो मैंने अभी तक किसी से सवाल, किसी ने उठाया नहीं है सवाल। अगर कोई सवाल बता के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ तो राजेश जी, अगर कोई बोलना चाहता है तो सिर्फ रेज हैंड करे तो हम उनको अलाउ करेंगे। मैन्युफैक्चरर रेट इफ नॉट सर्व्ड, बराबर। अच्छा राजेश जी का ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, वो बोल रहे हैं कि समझ लीजिए मैंने मैन्युफैक्चर आइटम भी बनाया और उधर ही सर्व कर दिया, तो कौन सा होगा? बराबर है आपकी बात, मेरा भी मानना वही है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करके सर्विस भी उधर कर दी तो आप 5% का रेट लगाना पड़ेगा, आपको 1% का नहीं लगाना पड़ेगा। बट एक छोटा किराना दुकान कैसे, समझ लीजिए मिठाई की दुकान कैसे ट्रैक रखेगा कौन से दाबेली, कौन सा वड़ा पाव, कौन सा ब्रेड उसने वहां सर्व किया और कौन सा वो टेक अवे में चला गया? ये तो मतलब इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू satisfy this condition, and even if they satisfy, impossible for an officer to prove it, to prove to an officer हाँ ये टेक अवे पे चला गया, ये इसमें गया। वो उनके पास तो क्या लिखा पट्टी होती है या एक छोटा सा मशीन होता है जो उसका छोटी सी बिलिंग मशीन होती है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो स्टारबक्स वाला तो पूछता है टेक अवे या क्या नाम है सर्व डियर, तो वो पंच इन कर देता है बिल में भी टेक अवे और सर्विस इन डाइन या कुछ ऐसा करता है। बट I don't think these small people have the facility and bandwidth to put that in the bill. तो वो एक सवाल उठता है भाई। उनके लिए तो सर वही अच्छा है ना, टेक अवे दिखाना, ट्रेडिंग में चला दिखाने जाएगा। बराबर, बट टेस्ट परचेज करने आ गया तो फिर वापस प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर तो। सिर्फ उसको उधर टेबल कुर्सी नहीं रखना पड़ेगा पहले। तो उसको, हाँ उसको टेबल कुर्सी बस ऑफिसर को बिठाने के लिए रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। सर एक पार्टिसिपेंट ने एक क्वेश्चन रेज किया है
हाँ जी, we have to pay any GST on closing stock at time of opt-in and opt-out in composition scheme. हाँ जी, there is a provision under section 18. I'll come to that. चलो, very since somebody has raised this, I'll look at that. Yes. Now, there are two things. We'll take it one by one. Composition scheme में input tax credit नहीं मिलता है, बराबर. Now, the day you opt out or the day you ceased to be eligible for composition, समझ लीजिए 29 सितंबर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है, या आपने सर्विस बिल बना दिया है, या आपने इंटरस्टेट कोई ट्रांजैक्शन कर लिया है, दैट डे व्हाट यू नीड टू डू इज आपको उस दिन का स्टॉक लेना पड़ेगा. उस दिन का स्टॉक लेके, वेदर इट इज इन रॉ मटेरियल, विप फॉर्म और कैपिटल गुड्स, सबका स्टॉक लेना पड़ेगा. फिर आपको उसका क्रेडिट लेना पड़ेगा आईटीसी में. तो डे यू शिफ्ट ऑन दैट डे, जो स्टॉक आपका पड़ा है फ्रॉम दैट डे, ऑन दैट डे यू हैव टू ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट, फाइल एन आईटीसी 01 and pay the stock. Now you may be having certain capital goods. समझ लीजिए फर्नीचर पड़ा था, आपने जीएसटी में खरीदा था, 3 साल पुराना खरीदा था, क्या आप क्रेडिट आज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो कैपिटल गुड्स के लिए, बट आपको 5% पर क्वार्टर रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल में आपने 3 साल पहले लिया तो 3 साल का आपने यूज कर लिया. 5 साल का अज्यूम्ड लाइफ है. जीएसटी फॉलोज 5 years. जीएसटी बोलता है लाइफ ऑफ एनी एसेट इज ओनली 5 years. तो luckily they have not put a number to the life of the taxpayer, भगवान की दया से, but for the life of the asset is 5 years. तो 5 years के हिसाब से 3 साल अगर आपने उस फर्नीचर को यूज कर दिया, लैपटॉप को यूज कर दिया है, बिलिंग मशीन को यूज कर लिया, तो 2 साल को आपको 2 साल प्रोपोर्शनेटली 40% आपको क्रेडिट मिल जाएगा. ये है एज रिगार्ड्स व्हेन यू ऑप्ट आउट ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट इज यू आर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. नाउ यू मे हैव अनदर सिनेरियो, you want to opt in for composition. आपका बिजनेस कम हो रहा है, या आप बोलते हो यार मेरा टर्नओवर से कोई क्रेडिट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा तो अपने जेब से ही जा रहा है वो. तो then if you opt in, you calculate the stock as on 31st March on the day on which you opt in for composition, 1st April let's say. तो समझ लीजिए कोई पहले पुराना रेस्टोरेंट वाले ने क्रेडिट पड़ा था उसके पास, तो उसने उस क्रेडिट का, समझ लो कटलरी का क्रेडिट पड़ा था, फर्नीचर का क्रेडिट पड़ा था. Whatever credit he has on the day of opting into composition will lapse. That is point 1. Point 2, you will take the stock of goods and capital goods and you will calculate इस पे मैंने कितना क्रेडिट लिया है. मैं बैलेंस देखूंगा. समझ लीजिए मेरे को इनपुट स्टॉक का क्रेडिट बनता है 10,000 रुपए और मेरे पास बैलेंस है 2,000 रुपए. तो 2,000 रुपए तो मैं रिवर्स कर दूंगा और 8,000 रुपए मेरे को कैश में बनना. When you opt into GST, if you have taken 10 rupees credit and you have stock on which the credit pertains is 8 rupees, okay, दो रुपए लैप्स हो जाएंगे और 8 रुपए आपको क्या नाम है क्रेडिट है तो कैश में भरिए, नहीं तो क्रेडिट है तो क्रेडिट से भरिए, नहीं तो कैश में. हाँ जी, किसी just wanted to confirm the limit of turnover for services. Is it 50 lakhs or 60 lakhs? Turnover for services is 50 lakhs, sir, for composition. Okay. I hope I've answered the issue. Okay, the point on shifting from composition or shifting to composition. चलिए आगे चलते हैं. Procedures चलो अभी थोड़ा हल्का करते हैं टॉपिक, then I'll open it up for the audience. If you are a new registration, you can apply for composition at the time of registration only. आप REG 01 में opt कर सकते हैं. From that date is registration. If you're a migrated one, जो migration cases है, which is not relevant now, but अगर है तो you could within 30 days opt. And for others, you can opt for composition only from the beginning of the financial. You cannot opt for composition in the middle of the financial. Okay. और हमने डिस्कस किया था कि if you opt in क्या करना चाहिए, आप क्रेडिट ले सकते हो. And if you opt in, you have to file CMP 01. ठीक है. Validity of composition, समझ लीजिए if you don't meet, if the officer gets to know यार आप तो interstate supply transaction, e-way bill देख के उसको पता चल गया यार आप तो ये interstate supply transaction कर
तो कोई बात नहीं, आप उसको वो पता करेगा, तो वो आपको CMP 04 इशू करेगा, फिर आप उसको रिप्लाई दोगे CMP 06 में, फिर वो रिप्लाई के हिसाब से ही विल अपहोल्ड योर कॉम्पोजिशन और मोर ऑफ प्रोसीजर. Returns, you will file a statement in CMP 08 every quarter by 18th of the month succeeding the quarter. बहुत ही सिंपल रिटर्न है. पता नहीं इंटीग्रेटेड टैक्स क्यों लिखा है, बट आउटवर्ड सप्लाईज वैल्यू सेंट्रल सेल्स टैक्स, इनवर्ड सप्लाईज RCM. You could have RCM on interstate basis. ऐसा मत मानिए कि RCM सिर्फ सेंट्रल टैक्स हो सकता है, इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड टैक्स RCM हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था you can procure interstate supplies, services or goods, tax payable interest. बहुत ही सिंपल सा रिटर्न है. फिर at the end of the financial year you will file your GSTR return 4, which is the actual return by 30th. Major data will be auto populated, बट आपको कुछ इनवर्ट सप्लाईज पे रिवर्स चार्ज कुछ भरना है तो आप भर सकते हो. दो ही बहुत ही सिंपल से फॉर्म है. हाँ, एक सवाल उठता है, समझ लीजिए 5 साल बाद ऑफिसर बोलता है यार आप तो 2018-19 के लिए कॉम्पोजिशन आपने जो ऑप्ट किया है वो तो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने कोई कंडीशन ब्रीच कर दी, कोई भी कंडीशन. तब क्या होता है? तब यू विल चार्ज रेगुलर रेट ऑफ टैक्स. Now, what is the regular rate of tax? Then you will have to start afresh the entire assessment. उसको देखना पड़ेगा, are you eligible for exemption? Not eligible. If you are eligible for exemption, he has to give you that exemption. If you are not eligible, he has to charge the entire rate 12%, 5%, 18% जो भी है. But सवाल ये उठता है टैक्स पेयर फंड से, मेरा क्रेडिट का क्या करूंगा? अगर आपका ऑफिसर बोलता है कि मैं आपको प्रोपोजिशन डिनाई कर रहा हूँ, तो क्रेडिट तो मेरे को ले नहीं सकता था उस रिटर्न पे, क्योंकि मेरा तो क्रेडिट तो लिए कॉम्पोजिशन में था. मैं तो उसी थॉट प्रोसेस में था कि मैं कॉम्पोजिशन में तो क्रेडिट ले नहीं सकता. GSTR 2 पड़ा रहेगा सारे साल का, 2 दिखता है कॉम्पोजिशन का. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से 2 दिखता है कॉम्पोजिशन का, पोर्टल पे 2 दिखता है. तो फिर मैं क्रेडिट, यस, मेरे हिसाब से आप क्रेडिट ले सकते हो. You'll have to present your claim for credit with all your invoices, and he is duty bound to give you the credit and charge only tax on the differential. And अभी तो GST काउंसिल ने बोले इंटरेस्ट भी डिफरेंशियल पे लगेगा, तो कम टैक्स बेनिफिट में मिलेगा आपको. यू कैन डू अ वर्किंग ऑफ 1/118. तो यू कैन, whether buyers can claim input tax credit, वो आई थिंक इज नॉट पॉसिबल. आपके कस्टमर समझ लीजिए कोई किसी ने GST नंबर भी दिया नहीं होगा, पर अगर कोई आप डिफरेंशियल टैक्स भरते हो तो क्या बायर्स क्लेम कर सकते? नहीं. But you yourself can claim input tax. ये थोड़ा ध्यान में रखिए. You'll have to fight for it, क्योंकि कोई देते नहीं है. So you can do that. Whether I have to reverse GST on stock at the time of closing of composition business. Whether you have to reverse GST on stock. ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे. एक बार देख लेता हूँ. If देवांग जी का सवाल ये है, whether I have to reverse GST on stock of material at the time of closing of the composition business. I will read it as closing of the entire business. ऐसा कोई composition business नहीं होता, क्योंकि pan based होता है, तो entire business आप close कर रहे हो. Whether he has to impose, whether he has to pay GST on reverse. According to me, मेरे को तो नहीं लग रहा है देवांग जी. I think so, no. या मेरे हिसाब से भी नहीं. Because हम लोग ने ITC ऑलरेडी लिया ही नहीं वो इनपुट्स पे. बराबर है आपका सवाल, बराबर है दीपेन जी. आई थिंक नहीं लगना चाहिए. आई थिंक दैट्स द राइट आंसर. चलो, I think first case study very simple, just as a final refresher. A person availing composition scheme in Haryana during a financial year crosses the turnover 75 lakh during the course of the year. That is, he crosses 75 lakh in December. अभी उसको 1.5 कर देते, ये पुराना केस स्टडी समझ लीजिए. He crosses 1.5 crores during the course of the year. He crosses 1.5 December. Will he be allowed composition? तो क्या सवाल है? I think सवाल, हाँ जी, anybody? आपको क्या लगता है? The moment he crosses 1.5 crore, will he be eligible for composition? Of course, the answer is no. Another सवाल है, केस स्टडी है.
A supplier is engaged in following activities legally eligible for composition. Mohan is engaged in legal services in Rajasthan. He is registered in the same state. Now, legal services, let's not look at it as lawyer services क्योंकि वो तो RCM में है, वो अलग चीज हो गई. But let's say he's entered into other legal, paralegal services समझ लीजिए. Not even paralegal, some other legal assistance, जैसे patent application देता है. He's not an advocate, but he's a patent agent. तो उसके लिए whether he's eligible for, he's providing services in Rajasthan. Now, Mohan is in, let's say Haryana, but he's providing legal services in Rajasthan, or he's registered in the same state. Yes. So whether composition, yes, if it is CGST, SGST transaction, he's eligible. But if he's doing the billing from another state, Haryana, then he is not eligible. ये ध्यान में रख लीजिए. So अगर आपका premises है, राजस्थान में भी ऑफिस है और हरियाणा में भी है, तो आप राजस्थान का बिलिंग राजस्थान से करिए, तो आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल. Sugam Manufacturers has registered office in Punjab and Haryana and supplies goods in neighboring states. Whether you can do composition, answer is clearly no. Okay, because interstate supplies you cannot do. Mohan Enterprise, both the schemes, 6% scheme वाले में भी नहीं कर सकते. Mohan has two registered business verticals in Delhi. It has aggregate turnover. So दिल्ली वालों के लिए काफी तकलीफ होती होगी कि वहां पर तो यूपी भी लगता है, हरियाणा भी लगता है, आई थिंक एक और स्टेट लगना चाहिए. तो दिल्ली में जो होते हैं ना, उनको अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम है तो थोड़ा ट्रिकी रहता है. यूनियन टेरिटरीज को भी काफी ट्रिकी होता है. आई थिंक दमन, आपका दमन भी यूटी में आता है ना, यूनियन टेरिटरी आता है ना, पौंडीचेरी, दमन. हाँ, तो जहाँ वहां अगर किसी का रजिस्ट्रेशन है दमन का, तो फिर वो यूटी जीएसटी चार्ज कर सकता है. बट आपके मुंबई में या कहीं और उसने सप्लाई कर दिया, तो फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट लगता है. It wishes to pay composition for levy of one vertical in the current year and under a normal levy on the other. You are required to advise. Can you do composition vertical wise? बिल्कुल भी नहीं. आप सिर्फ पैन बेस्ड, पूरा पैन बेस्ड टर्नओवर लेना चाहिए. तो आप composition स्प्लिट नहीं कर सकते. इस वर्टिकल के लिए मैं ये बदलूंगा, दूसरे वर्टिकल पे फिर एक. ये केस स्टडी 4 इंटरेस्टिंग है. He has a turnover of 25 lakhs and 15 lakhs of goods as trader. Whether composition scheme is available, if yes, what is the rate of tax? So he is crossing the 10%, so he's not eligible for that 1%. But the moment he crosses 10%, he can opt for the other scheme. मेरा एक सवाल है, चलो एक और केस स्टडी है. ये अब सवाल चलो देखते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. Yes, I'll repeat case study 1 for some time. Wait. Let's say I have a registration in महाराष्ट्र. लेट्स से बेलगाम में एक रजिस्ट्रेशन है और उसके शोलापुर में आपका महाराष्ट्र 2 रजिस्ट्रेशन है, एक महाराष्ट्र में एक बेलगाम. कैन आई ऑप्ट फॉर 6% composition in Karnataka and 1% composition in Maharashtra? क्या जवाब हो सकता है? दोनों composition में, but can I opt for 6% here and 1% there? कोई जवाब देना चाहते हैं? I am within the 50 lakhs limit. विशाल जी, अमन जी, मेरा सवाल समझ पाए? Was I clear in my question? Yes, sir. Yes. Yes. तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता 2 ऐसे अलग अलग रेट का ऑप्शन. एक स्टेट में अलग अलग रेट का. चलो पढ़ते हैं. ये सवाल मेरा को अभी आया विचार में. I think जो so. state wise है तो state wise you can take. हाँ, देखिए Because वहाँ पे computation of tax is conditions state wise. हाँ बोलिए दीपेश जी. वहाँ पे आई थिंक सो कंडीशन सिर्फ है कि अगर आप एक पैन में आप कंपोजिशन में गए तो सब पे कंपोजिशन कंपलसरी है. हमने वो कंडीशन तो मीट कर लिया ना. हाँ, मगर अलग अलग रेट के लिए आई थिंक सो कंडीशन नहीं कि एक जगह 1% रहेगा तो दूसरी जगह में 6% नहीं कर सकता. मेरे हिसाब से कर सकते हैं. ये एक इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है. केस स्टडी एक्चुअली हमने डाला नहीं है. तो ये आई होप फॉर द पार्टिसिपेंट्स आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन. महाराष्ट्र में मैं 1% लेना चाहता हूँ और कर्नाटक में मैं 6% लेना चाहता हूँ. कैन आई डू दैट प्रोवाइडेड आई मीट द 50 lakh limit in Karnataka? I know I need to meet 50 lakh limit both Karnataka and Maharashtra put together. Barabar. And I am not doing any interstate transaction. I think you can. I think it's a very clear possibility. You can do. I can do trading in Maharashtra and I can do services in Karnataka within 50 lakhs aggregate pan based.
I'll pay 1% in Maharashtra and I'll pay 6% in Karnataka. बराबर हो सकता है मेरे हिसाब से. कोई दूसरा व्यू किसी का? Sir, it's like if in Maharashtra I'm giving only takeaway, in Karnataka I'm serving the food. Then we can go for 1% in Maharashtra and 5% in Karnataka. बराबर. Vishal ji, I think I agree with you, Vishal. Yes, I feel it is possible. Yeah, subject to category wise composition, I think it's possible. Agreed, sir. Yeah. एक किसी का सवाल है, can you repeat case study 1? A person availing composition scheme in Haryana in the financial crosses the turnover of 1.5 crore during the course of the year. That is, he crosses the turnover 1.5 in December. Will he be allowed to pay composition under the scheme for the remainder of the year? I think very straightforward sawal. The answer to this is, in the middle of the year, if you breach any of the conditions, then you cannot continue for composition for the balance period. In fact, the next invoice, forget balance period, 101 नंबर पे आपने 1.5 करोड़ क्रॉस कर लिया, 102 नंबर इनवॉइस आपका ऑटोमेटिकली जीएसटी लगना चाहिए पूरा 18% या 12%, जो भी आप करें. It's not that even the next day or within 30 days, it is automatic by default. आपका रेट 18 होना चाहिए. अभी सवाल क्रेडिट नोट पुराना इश्यू करते हो तो क्या सवाल आएगा, वो वाला कॉम्प्लिकेशन है. आप बोलोगे यार पुराने का क्रेडिट नोट कैसे बनाओ, वो पुराना का क्रेडिट नोट फिर आपको पुराने रेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, वो मैपिंग करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है सर. और कोई सवाल है किसी का? आई होप आई आंसर्ड. I think I hope I was clear. I don't have too many other points. I kept it simple. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई सवाल है तो I am free to take that questions for the next 15 minutes. ऋषभ जी, मेरे को एक क्वेश्चन है. बोलिए सर. जो कॉम्पोजिशन स्कीम का जो रेस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ एक जगह लिखा था दैट मतलब द बिजनेस shouldn't be supplying services or goods via e-commerce operator. बराबर. तो रेस्टोरेंट्स और ये स्विगी जोमेटो से इनका कुछ है रिलेशन? बिल्कुल. E-commerce operator has been defined and let me just go to that definition एक बार के लिए. Yes, sir. I think you will be barred from doing. You are barred from continuing under composition. Because अभी hardly आज कोई रेस्टोरेंट है जो who is not using the services of Swiggy and Zomato. See, एक ये क्या अभी क्या होता है एक्चुअली 50 e-commerce operator is applicable only when you look at 9(5) and 9 and section 52 if I'm not wrong. Yeah, TCS. These are the only two places where e-commerce operator operates. If that particular service is not notified under e-commerce operator provisions 9(5), the e-commerce operator provisions, I think only in the recent budget they have added what do you say, Swiggy. इसके पहले सिर्फ हाउसकीपिंग एंड उबर ओला वाले केसेस थे. Swiggy, those who were under food delivery was not strictly under e-commerce provisions of 9(5). क्योंकि क्या होता है, e-commerce operator का कोई provision होता है, it is the e-commerce operator who has to pay the tax. जैसे उबर होता है तो ड्राइवर doesn't have to pay the tax. The Uber और ओला pays the tax. तो अगर आपका जो एक्टिविटी है और ये स्विगी का जो सिनारियो है, ये तो अभी आया जीएसटी काउंसिल के रिसेंट मीटिंग में आया, लास्ट मीटिंग में. हाँ, उसके पहले स्विगी फूड डिलीवरी वाज नॉट अंडर द ई-कॉमर्स ऑपरेशंस ऑफ 9(5). तो आई थिंक टिल दैट हैपेंस, आई थिंक you are not governed by e-commerce operator provisions, so you are still eligible for composition. मेरा जो मानना है, please, I mean this is something which I have also not thought about, correct me if I'm wrong, but my prima facie view is you are eligible for composition. Okay, thank you. I stand corrected. I initially said not eligible, but I think you are eligible. 52 भी नहीं लगता है if I'm not. 52 बोलता है notwithstanding every e-commerce operator not being an agent shall collect an amount. बराबर है.
an e-commerce operator under 52 and 95 is only for two scenarios. One is housekeeping, and one is, let me just confirm to you, housekeeping and rent a cab. ये दो ही है. Yes sir, और कोई सवाल है? सर और कोई सवाल तो नहीं लग रहा है. Yeah, correct. Notification 17 of 2017. Services by way of transportation of passengers by radio cab, maxi cab, that is one. Services by way of providing accommodation in hotels, residential lodging, except where the service supplying through e-commerce is liable for registration. Perfect. Not housekeeping, I'm sorry, lodging and boarding and radio taxi, but restaurant or food deliveries was not covered, which is only going to get covered after this recent notification. I think my view is a lot more conclusive now. 17 of 17 आप पढ़ सकते हो sir, I think 17 of 17 e-commerce operator. विशु जी, और एक क्वेश्चन था, बोलिए. इन केस ऑफ अगर मेरे दो अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, कंपोजिशन डील है, तो जो भी वो जो क्रॉस चार्ज का इशू था कि सर्विसेज ऑफ वन ब्रांच गिवन टू अनदर ब्रांच इन डायरेक्ट वे, सो इन केस के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस है वो महाराष्ट्र में ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट महाराष्ट्र में उसने सर्विसेज दोनों के लिए दे रहा है, महाराष्ट्र के लिए भी दे रहा है, आंध्र प्रदेश के लिए भी दे रहा है, और मगर वो इनवॉइस महाराष्ट्र के लिए रेज कर रहा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ महाराष्ट्र ब्रांच टू रिकवर इट फ्रॉम आंध्र प्रदेश ब्रांच, तो क्रॉस चार्ज में दोनों जन आउट ऑफ कंपोजिशन हो जाएंगे. One is supplying services, one is getting services from outside, interstate. सर ये स्टॉक ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज है ना, ये एक टॉपिक बहुत डेंजरस टॉपिक है. किसी ना एंड पॉइंट है, ना स्टार्ट पॉइंट है, ना एंड पॉइंट है. ये हाँ, ये क्रॉस चार्ज कहाँ से पैदा होता है, कहाँ खत्म होगा, किसी को कोई सवाल नहीं. ये क्रॉस चार्ज मैंने अगर मेरे समझ लीजिए एक छोटा सा ब्रांच रहा बॉम्बे ऑफिस में, तो अगर मैंने फोन उठा के पूछ लिया उससे कि यार आज का क्या काम किया, तो मेरे को क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा क्या? तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ना, बहुत सही सवाल है लीगली, बट इसका ना शुरुआत है ना अंत है इस सवाल का. तो आप बस अपने को कोई ऑफिसर आया तो मैंने तो अपना मन बना लिया है कि सर हम तो बहुत ही इंडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे को फोन भी नहीं करते, ऐसा ही जवाब देना हम लोगों को, कोई क्रॉस चार्ज ही नहीं है. हाँ, बिकॉज अगर क्रॉस चार्ज बोलेंगे तो दोनों जन आउट ऑफ कंपोजिशन पे चलेंगे. दोनों, अरे रेगुलर स्कीम में भी वो बोलेगा, ऑफिसर बोलेगा आप क्रॉस चार्ज करो, इधर टैक्स भरो, उधर क्रेडिट नहीं दूंगा ना. हाँ. ना 1 रुपए इस जेब से उस जेब में भी गया नहीं, तो भी वो टैक्स भरवाएगा. यस. तो ये बहुत ही टची टॉपिक है. इस क्रॉस चार्ज को मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर हमारे शुरू में जीएसटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया मेरे हिसाब से. Yes. उस टॉपिक को जितना शांत रखेंगे उतना ही बेहतर है हम लोगों के लिए. ओके. नहीं, मेरे पास जवाब नहीं है ऑनेस्टली आपके सवाल का, बट ये बहुत ही टची टॉपिक है ये. ओके. थैंक यू सर. आई थिंक और कोई क्वेश्चंस है नहीं ज्यादा. आपने very well you cleared everything in composition scheme. Thank you for sparing your valuable time, sir. And it's justifying the 50th meet of the study circle. Yes. Played like a half-century batsman, sir. Thank you very much, sir. I must congratulate. In fact, दुष्यंत जी बता रहे थे कि one of the most, I was not too aware. I'm sorry, but one of the biggest study circles I think across India. Yes, sir. Yes, sir. The largest membership, and I think one of the flagship study circles of WIRC. Yeah. And I was surprised by the record participation. कि हम लोग बैंगलोर में स्टडी सर्कल चलाते चलाते थक गए तो भी अटेंडेंस नहीं आता है. आप फिजिकल में 300-400 इकट्ठा करते हो, मतलब बहुत ही, मतलब इट्स अ क्रेडिबल थिंग. 50th ईयर, ये 50th ईयर हो गया आपका? नहीं, 50th मीटिंग था सर ये साल of this year, of this calendar year. तो कितने साल का हो गया स्टडी सर्कल? स्टडी सर्कल तो सिर्फ मेरे ख्याल से 20 साल तक हो गया सर. अरे 20 साल तक चलाना, और इस साल का 50th मीटिंग, आई थिंक 3/4 of the year. Yeah. On a virtual mode, I think
Congratulations to Thank you, the thank study you. circle. You all deserve, the conveners thank and the you. organizers deserve a very big round of. And you very well justified the 50th meeting, sir. Thank you. Like It is my honor. half century batsman, I sir. hope I have justified. I hope. I request Dipen to give hearty vote of thanks. Thank you. Thank you. Thank you, Vishal Bhai. Rishabh ji, it was an excellent session. First of all, accepting our invitation and sparing your valuable time. We thank you for the same. You had taken us to the entire composition scheme in detail, starting from eligibility point of view. What are the requirements? What are the conditions? What are the pros and even the cons of accepting a composition scheme? Thank you, Rishabh ji. I request everyone to greet him with a loud applause. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.